Hello students, how are you all? Yes, in our previous lecture we were studying the speed and we were discussing the numericals based on the speed. Some of the numericals we already discussed and I told you to do rest of the numericals, and I am hoping so that you have done the rest of the numericals. But those who didn't solve the numerical or those who got some problem while solving the numericals, I am doing the rest of the numericals on the board here. So yes, first two numericals we have done. Third numerical was Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meters per second, calculate the distance between her house and the school. Actually, in numericals, in higher classes also, in this class also, whenever you are going to do the numericals, what you have to do, first write the information whatever told in the question. जो भी क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन बताया गया है, सबसे पहले आपको वो लिखना होता है, देन डू द न्यूमेरिकल पार्ट. तो यस, थर्ड न्यूमेरिकल इज टाइम टेकन इज 15 मिनट्स, इट्स गिवन, and speed is given, that is 2 meters per second. So yes, time and speed is given, you have to calculate the distance. So yes, distance you have to calculate. So yes, it is in meter per second, speed is in meter per second, but here the time is in the minute, so we have to match the unit. जो भी आपकी स्पीड की यूनिट दी हुई है उस फॉर्म में हमें बाकी आंसर को सॉल्व करना होता है. यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, यूनिट्स को चेंज आपको करते रहना पड़ेगा. तो मेक श्योर कि आप वो यूनिट्स में चेंज कर रहे हो, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. तो यस, हियर इट इज इन सेकंड, हियर इट इज इन मिनट. तो हाउ वी कैन कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 60. तो यस, इट बिकम्स 900 सेकेंड. So yes, 900 सेकेंड आ गया. हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम. स्पीड इज गिवन 2, थोड़ा नीचे कर देती हूँ, 2. स्पीड हमें गिवन है, डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट, एंड टाइम इज गिवन, दैट इज 900. तो यस, 2 into 900 इट विल बी डिस्टेंस, एंड इट इज 1800 मीटर. डिस्टेंस क्योंकि मीटर में था यहाँ पे स्पीड के अंदर, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो मीटर. तो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार हैविंग अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स एंड देन 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार? तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस? अगेन द सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. स्पीड इट्स गिवन, तो यस, स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर and distance we have to find out, and time is given in the minute, but यहाँ पे तो hour दिया हुआ है, तो we have to convert minute into hour by dividing it with 60, and it will comes out to be 1/4 hour. तो distance by 1 divide by 1/4 यही होता है. इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो distance by 1 into 4/1 यही आ जाएगा. जब आप अगर मैथ का क्वेश्चन करते हो तो आपको ये सॉल्व करना आता है. तो यहाँ पे ये हो गया, तो यानी कि 40 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू डी, एंड इट विल बी 10 किलोमीटर. तो फर्स्ट हमारे पास 15 मिनट्स का डिस्टेंस आ गया, दैट इज 10 किलोमीटर. नेक्स्ट हमारे पास अगेन इसको 60 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा आवर में. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. सेम फॉर्मूला 60 और 4D आ जाएगा. जब हमने इसको सॉल्व किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही आया था. तो 60 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू डी, दैट इज 15 किलोमीटर. तो फर्स्ट हाफ के लिए आपके पास 10 किलोमीटर डिस्टेंस आया, सेकेंड हाफ के लिए 15 किलोमीटर. देन व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस आप जब इन दोनों को प्लस करोगे, 10 + 15 इट बिकम्स 25 किलोमीटर. So that's how we can find out the answer of the different questions. So yes students, our next topic is uniform and not uniform motion. So yes, what do you mean by uniform motion? Uniform motion is a type of motion in which an object
travels equal distance in equal interval of time. Yes, if an object travels equal distance in equal interval of time, that means an object is having uniform motion. What does it mean? It means that, for example, a car is moving along a straight line and it is covering equal distance, like this is 0 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer, and so on in equal interval of time, like 10 minutes. Again, the distance between these two is 10 kilometer, 20 minus 10. The distance between these two points is 10 kilometer and it is covering in 10 minutes. Again, the distance between these two points is 10 kilometer and the car is covering this distance in 10 minutes. It is also means that if we are dividing these kilometers, then again it is taking the same interval. इसमें क्या है, इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, कि हमने पहले 10-10 किलोमीटर का एक क्राइटेरिया ले लिया, लेकिन अगर हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तब टाइम भी उसी प्रोपोर्शन में ही डिवाइड होगा. लाइक द सेम कार इज कवरिंग 5 किलोमीटर इन 5 मिनट्स. इसको मैंने हाफ कर दिया तो 5 बना. अब 5 किलोमीटर भी पहले 5 मिनट में ही कवर करेगी वो. उसके बाद ये अगर मैंने इसको फर्दर हाफ कर दिया 2.5 किलोमीटर, यानी कि ये 2.5 मिनट में. तो यानी कि जितना भी मैं इसको छोटे से छोटा प्रोपोर्शन में कट करती जाऊं, हर एक स्मॉल से स्मॉल फ्रैक्शन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही कवर हुआ होगा. इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. तो यस, or an object is possessing uniform motion if it is covering equal distance in equal interval of time. ठीक है. Now opposite of it is non-uniform motion. So what does the non-uniform motion means? If an object covers non-equal distance in equal interval of time or इक्वल डिस्टेंस इन नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों में से कोई भी एक चीज वेरी कर सकती है. या तो हमने 10 किलोमीटर का बेस बना लिया, वो कभी 10 मिनट्स में किया, कभी 15 मिनट्स में किया, कभी 5 मिनट्स में किया. या हमने क्या किया, टाइम ड्यूरेशन को फिक्स कर लिया, 10 मिनट्स ले लिया, उसमें कभी 2 किलोमीटर कवर किया, कभी 10 किया, कभी 15 भी किया. तो इस तरह से तो दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को फिक्स कर लिया, दूसरी क्वांटिटी को वेरी किया, तो उसमें जो हमें मोशन मिलता है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. जनरली वी आर कीपिंग टाइम कॉन्स्टेंट एंड वी आर ऑब्जर्विंग कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम. ठीक है, वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस वी आर मेजरिंग बाय द हेल्प ऑफ द टाइम. ठीक है. तो in our day routine life, we are observing that nothing, not even a single object in the nature is possessing uniform motion. किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है. इट इज एन आइडियल कंसेप्ट. आइडियल मतलब हाइपोथेटिकल, जो हम सोच सकते हैं. ये नेचर में हमें मिलता नहीं है. नेचर में वी आर ऑलवेज गेटिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे हम स्कूल बस का एग्जाम्पल हर बार लेते हैं. स्कूल बस जहाँ पे रोड खाली है वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी उतने ही टाइम में. जहाँ पे हमारा कंजस्टेड एरिया है या फिर क्राउडेड एरिया है या फिर जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में वही बस सेम टाइम के अंदर बहुत ही कम डिस्टेंस भी कवर करती है. तो बेसिकली क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. अगर हम एक सिंपल सी बात करें, एक सिंपल सी कोई मशीन है, वो रिवॉल्व कर रही है. ठीक है, तो हमने उसको एक बार स्पीड देके, या हमारे पास एक स्पिनिंग पिन है, हमने उसको एक बार घुमाया और एक बार उसको छोड़ दिया. स्टार्टिंग में आपको पता है कि स्पीड कितनी ज्यादा होती है स्पिनिंग पिन की, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे एनर्जी कंज्यूम होती रहती है उसकी स्पीड कम होती जाती है. तो यानी कि पहले वो ज्यादा रिवोल्यूशन लेगा 1 सेकंड में, फिर उसके बाद रिवोल्यूशन कम होती जाएंगी पर्टिकुलर टाइम में. तो बेसिकली वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड अस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. तो यस, ये है हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऑन द बेसिस ऑफ दैट
we are coming across with a particular type of graph जिसको हम बोलते हैं distance time graph. A distance time graph is a type of graph which is made between distance and time. In this graph, तो आपने ग्राफ पेपर देखे हुए हैं, तो ये ग्राफ पेपर्स होते हैं, उसके एक साइड में हम लोग जो है ये हमारे पास दो एक्सिस होती हैं. दिस इज एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो वर्टिकल होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज द ओरिजिन वेयर दीज टू एक्सिस मीट्स. ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे कुछ नहीं है, सब कुछ 0 0 है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, जहां से स्टार्ट होगा कोई भी प्रोसीजर. एंड वन थिंग वी हैव टू टेक ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस. वन थिंग वी हैव टू कीप ऑन द वाई एक्सिस. नाउ वी आर हैविंग टू क्वांटिटीज, independent quantity and dependent quantity. So yes, independent quantities are those quantities which changes according to our will. जैसे हम चाहते हैं वैसे ये वेरी करती है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज. इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज में जो भी वेरिएशन हमने किया, उसकी वजह से जो भी इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पे आया, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी. एंड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एज आई टोल्ड यू, डिस्टेंस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द टाइम इज चेंज. जैसे जैसे हम टाइम चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस में वेरिएशन आता है. सो यस, द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वी हैव टू टेक ऑन द वाई एक्सिस टाइम, and time is to be calculated in the particular graph in minutes. तो हमने ब्रैकेट में लिखा, हम उसको मिनट्स में कैलकुलेट करते हैं. एंड डिस्टेंस, यहाँ पे एरो लगा दो, यानी कि हम इस तरफ की बात कर रहे हैं. यहाँ पे ये एरो, यहाँ पर हमारा है डिस्टेंस विच इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इट हैज टू बी कैलकुलेटेड इन किलोमीटर. हम इसको किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं. तो यस, इस तरह से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये बेसिस है. Now I am going to show you a graph and discuss the rest of the points related with it. So students, here I am showing you one graph paper. So this is a graph paper. Maybe you all are already familiar with it. आपने मैथ्स क्लास में किया हो. तो यस, ये हमारे पास ग्राफ पेपर है. I have drawn two lines. One is horizontal lines, this is x-axis. One is vertical line, that is y-axis. तो दो लाइन्स यहाँ पे बनाई गई है. This is x-axis and this is y-axis. तो you can see here that many small boxes are there. तो यस, आप इन स्मॉल बॉक्सेस को भी पैरामीटर ले सकते हो, इन बड़े वाले बॉक्सेस को भी पैरामीटर ले सकते हो. तो यस, जनरली क्या होता है, हमने यहाँ पर, मैंने आपको अभी बताया, this is origin and this is the time taken in minutes. This is distance in kilometers. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, इनको छोटे छोटे एरियाज में कट कर देते हैं. लाइक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट. हमें यहाँ पे मिनट लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे मिनट लिख चुके हैं. दैट मीन्स वॉट एवर वी आर राइटिंग हेयर, ये अपने आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हम इसको मिनट्स में ही ले रहे हैं. तो ये टाइम यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख दिया है. तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड डिस्टेंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे किलोमीटर में लिख दिया. और ये 10 छोटे छोटे 10 बॉक्सेस, मतलब एक बड़ा बॉक्स, ये हमने एक पैरामीटर लिया है. तो ये हमने एक पैरामीटर लिया है. इक्वल पैरामीटर लेना पड़ेगा आपको हर बार. ऐसा नहीं कि पहली बार आपने यहाँ ले लिया, अगली बार आपने 5 बॉक्सेस को काउंट कर लिया. नहीं, ऑलवेज यू हैव टू टेक द इक्वल पैरामीटर्स जो भी आपने लिया है. तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. तो इस तरह से आपने
टाइम और डिस्टेंस को लिख लिया है। अब हमने क्या करना है कि जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, मान लो इट इज गिवन कि अ कार इज मूविंग 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, तो यस 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। यहां से भी आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे, यहां से भी स्ट्रेट लाइन लगाओगे, जहां पर ये दोनों मिल जाएंगे वहां पर एक पॉइंट लगा दोगे। नेक्स्ट, द सेम कार इज कवरिंग 5 किलोमीटर इन 5 मिनट, 5 किलोमीटर इन 5 मिनट, तो दैट मीन्स यहां पर ये दोनों पॉइंट्स मीट होंगे। एंड अगेन दिस सेम कार इज कवरिंग 7 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, 7 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, तो यस यहां पर आया ये आपके पास पॉइंट। तो एक कार के 3 डायमेंशन आपको गिवन है, तो उसके बेसिस पे आपको बताया गया है या पूछा गया है व्हाट विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो आपने सारे के सारे पॉइंट्स लगा दिए हैं। नाउ यू हैव टू मैच ऑल दीज पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। आप देखोगे स्केल की हेल्प से क्या ये पॉइंट्स मैच होते भी हैं या नहीं। तो हमने जब यहाँ पर देखा तो हम देख रहे हैं कि ऑल दीज पॉइंट्स कैन मैच, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक जगह पे मिल सकते हैं। एंड द अल्टीमेट लाइन विच वी आर गेटिंग आफ्टर द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कार है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसका यूनिफॉर्म मोशन है, मीन्स इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब चाहे मैं इसके फ्रैक्शंस को भी कट कर लूं कि 3 सेकंड में या 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो उतना ही आएगा, इक्वल आएगा, चाहे आप इसको कितने भी बारीक से बारीक डायमेंशंस में कट कर लो। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर केस इज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सो इस तरह से हम अलग अलग ब्लॉक्स लगाते हैं और उसके बेसिस पे हम टाइम और डिस्टेंस को फाइंड आउट करके अलग अलग ग्राफ बनाते हैं। So now students, the last topic of this chapter is distance time graph for various forms of the motion. How we can draw the distance time graph for various kind of situation. The first situation is a uniform motion. Uniform motion we already discussed. So yes, when we are going to draw a graph on that, we discussed now only. तो उसमें क्या है कि टाइम इज टू बी टेकन हेयर ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टू बी टेकन ऑन द वाई एक्सिस इन किलोमीटर. Small boxes are there and this is origin 0 point. So yes, it always and always will comes as a straight line. Straight line means the object is taking equal time in covering equal distances of in covering every equal distance. ठीक है, वो हर बार इक्वल टाइम ले रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में या कवर करने में, या इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में वो इक्वल टाइम ले रहा है, दोनों ही बातें ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मीन्स अ मोशन इज एन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो अभी हमने ग्राफ में भी डिस्कस किया है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ कर्व लाइन, किसी भी तरह की कर्व लाइन आ सकती है। यहाँ पर हमारे सेम डायमेंशन रहेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। एंड कर्व कैन बी दिस, कर्व कैन बी दिस, किसी भी तरह का कर्व आ सकता है। ठीक है, तो अगर कर्व लाइन आई दैट मीन्स द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, मीन्स द ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वो कभी डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी यहाँ पे रैंडम लाइन भी हो सकती है, किसी भी तरह की लाइन हो सकती है। सो मीन्स इफ द लाइन इज नॉट स्ट्रेट दैट मीन्स द मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कितना भी टाइम हम बढ़ाते जा रहे हैं उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमारे पास ग्राफ क्या होगा, अगेन द टाइम टू बी टेकन हियर ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस विल बी ऑन वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो इस तरह की लाइन आएगी, स्ट्रेट, जो बिल्कुल पैरेलल होगी विद द टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास टाइम है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड सो ऑन, और ये हमारे पास डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड सो ऑन।
तो अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 4 किलोमीटर पे है या कहीं पर भी 0 किलोमीटर पे है, कहीं पर भी उसकी पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद द इंक्रीज इन द टाइम. टाइम बढ़ते जा रहा है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम है. तो अगर इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइम ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स ड्रॉ भी कर सकते हैं एंड वी कैन ऑब्जर्व इन द डायग्रामेटिक क्वेश्चन. अब क्वेश्चन कैन कम कि तीनों तरह के डायग्राम बनाए हुए हैं एंड आस्क, एग्जामिनर कैन आस्क कि विच पर्टिकुलर ग्राफ इज शोइंग द यूनिफॉर्म मोशन, which particular graph is showing the non-uniform motion, and which particular graph is showing the motion of the object is not changing, या position of the object does not change with the change in the time. तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं. 1 मार्क का एमसीक्यू कैन कम एंड लॉन्ग क्वेश्चन कैन कम कि ड्रॉ अ पर्टिकुलर ग्राफ फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो इस तरह से आपके पास ये आ सकती हैं. तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड द टाइम. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जो पेंडुलम टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्पीड के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो डेफिनेशंस है, एंड these graphs are very 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 important. So yes beta, this is basically about this chapter. Now this chapter is completed. Tomorrow we are going to take the book work of this chapter. So before that, what is your work? You have to find out the answers of the book work by yourself, and whenever I will give you the answer keys tomorrow, you have to match your answers with my answers. So this is work for today, and this is all about for today's video. Thank you.